part 2 of force and pressure chapter. So in our previous video we have already discussed about the characteristics of force and about the balanced and unbalanced force. So in this video we are going to discuss about the types of force and also about the pressure. Okay, so first one, that is the types of force. So here the classification is based on the nature of interaction between two or more objects. Okay, so on the basis of interaction, there is a two type of force. First one, that is of contact force, and the second one, that is of non-contact force. So first one, that is of contact force. So contact force क्या होता है? So basically this kind of force are applied only when two or more objects come in contact with each other. मतलब दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है, सो दोनों ऑब्जेक्ट में, सो बेसिकली दे come in contact directly with each other. Okay, and that time they exert a force. We can call that force, that is the contact force. Okay, so as like the muscular force and the frictional force. So the first one, that is the muscular force. Okay, so in muscular force the main thing is that is a muscle. So what do you mean by the muscle? So muscle, that is one type of special cell present in our body which helps in movement. Okay, so any type of movement occurs in our body as like when जब हम वॉक करते हैं, या आज इन केस ऑफ हमारा जो लंग्स का एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन जो होता है, या आज इन केस ऑफ जब हम ड्यूरिंग द स्वालोइंग, सो जब फूड का मूवमेंट होता है, सो ऑल द एक्टिविटीज दैट इज ड्यू टू द मसल. ओके, ड्यू टू द मस्कुलर फोर्स. मतलब कि so due to the activity of muscle, the force exerted, we can call that force, that is a muscular force. Okay, simply we can say that is the muscular force. Then the next one, that is called the frictional force. So frictional force, basically this type of force is exerted by the surface over an object whenever the object moves on the surface. Okay, that means इधर आप ये पिक्चर देखो, तो इधर देयर इज दिस वन इज ए सरफेस एंड दिस वन इज ए बॉक्स. ओके, सो एज इन दिस केस अगर आप इस बॉक्स को इधर से पुश कर रहे हो, ओके, अगर आप इधर से उसको पुश कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है? सो यू आर अप्लाइंग ए फोर्स and that force is the muscular force. Okay, because you are using your muscles. Okay, so आपका जो फोर्स है उसका डायरेक्शन है इन दिस डायरेक्शन, और सो मोशन भी किस डायरेक्शन में होगा? as in this direction. Okay, so your force and your pushing force and also the direction of motion, that is similar. लेकिन उधर क्या हो रहा है? जो सरफेस में वो बॉक्स रखा हुआ है, बेसिकली दैट सरफेस एक्सर्टिंग ए फोर्स टुवर्ड्स द बॉक्स. तो ये जो सरफेस है बेसिकली ये क्या कर रहा है? इट एक्सर्ट ए फोर्स टुवर्ड्स द बॉक्स. ओके, एंड दैट फोर्स इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द पुशिंग फोर्स एंड ऑल्सो टू द मोशन. ओके, सो मोशन का जो डायरेक्शन है और पुशिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है उससे ये कंप्लीटली ऑपोजिट है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. So remember this thing, this one is very important. The force of friction always act in the opposite direction of the motion of object. Okay, मतलब कि ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन जो होता है, सो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा अपोजिट ही काम करेगा. ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज ऑफ इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ हीट एज टू सरफेस कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर. मतलब जब दोनों सरफेस में कुछ कंटैक्ट हो रहा है, सो दोनों के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्म हो रहा है, सो बेसिकली दैट टाइम इट जनरेट सम हीट. ओके, सो व्हेनेवर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जब आप अपने हैंड को रब करते हो, सो देयर आर सम हीट प्रोड्यूस्ड. ओके, सो दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. और एक चीज, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज लीड्स टू वियर एंड टियर ऑफ द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे आपका जो शूज है, तो शूज में कुछ रफ चीज होता है ना, उसके जो शूज के जो सोल है, तो सोल्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं बेसिकली दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. ओके, तो फ्रिक्शन क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा तो आपका जो मोशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा. मतलब always remember the force of friction always slow down the motion.
तो आपके शूज में जो चीज है, जो पैटर्न है उसमें, तो ये क्या करता है, सो इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फॉलिंग. ओके, सो मतलब ये क्या करता है, एक तो ग्रिप करने में आपको हेल्प करता है. ओके, सो और एक चीज आपको याद रखना है, सरफेस जितना स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन उधर क्या होगा, कम होगा, और जितना रफ होगा तो उसमें फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा. ओके, सो बेसिकली दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट थिंग दैट इज द एयर रेजिस्टेंस. तो एयर रेजिस्टेंस क्या है, सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द air or fly in the air, it experience a force that is called the air resistance. Okay, so this resistance basically also faced by the birds. तो birds भी जब fly करते हैं तो वो they also face the air resistance. तो ये क्या है, so basically this is a contact between the air and the object. तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो इधर देखो, आप ये पिक्चर देखो, तो इसमें क्या है, एरोप्लेन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और तो जो एयर है उसके फ्रंट में और उसके कंटेक्ट में जो एयर है, बेसिकली दैट एयर ऑल्सो एक्सर्ट ए फोर्स टुवर्ड्स द aeroplane. Okay, and that force is completely opposite to the motion of aeroplane, and that force is called, that is the air resistance. Okay, so as in this air resistance, so basically if you see the shape of the bird, so they have a specialized shape, that is the cylindrical shape with tapering end. Okay, and that shape facilitate them to reduce the air resistance. Okay, because air resistance is very tough for them. Okay, so to reduce the एयर रेजिस्टेंस दे हैव ए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर. और बेसिकली बार्ड का स्ट्रक्चर जैसे होता है वैसे ही हमारा जो एरोप्लेन उसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है. सो दिस शेप फैसिलिटेट देम टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस. ओके, सो दिस वन ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स. देन नेक्स्ट, सो हियर दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रिक्शनल फोर्स. लुक एट द पिक्चर. सो इधर पे क्या हो रहा है, ये जो लोग हैं ये बॉक्स को खींच रहे हैं, तो बॉक्स का मोशन का डायरेक्शन देखो, फिर इसका जो पुशिंग फोर्स है उसका भी डायरेक्शन सेम है, लेकिन उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज ऑपोजिट. ओके, सो नेक्स्ट दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. So next one, that is the non-contact force. So the non-contact force is applied to an object by another body that is not in direct contact with it. Okay, so this is opposite to the contact force. तो इधर direct contact नहीं है, लेकिन दोनों चीज के बीच कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. ओके, सो विदाउट एनी कंटैक्ट, सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द नॉन कंटैक्ट फोर्स. ओके, सो नॉन कंटैक्ट के फोर्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो लेट मी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स. सो द मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सो यू नो अबाउट द मैग्नेट्स. मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को, ये आप सब जानते हो. ओके, सो बेसिकली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स. ओके, ऑल्सो यू नो अबाउट द बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट का दो पोल्स होता है ना, एक तो होता है नॉर्थ पोल और द साउथ पोल. सो देयर आर सम रिलेशन बिटवीन द टू पोल्स. तो उसमें क्या होता है, अगर आप दो बार मैग्नेट्स लेकर अगर आप उसको, लुक एट दिस पिक्चर. सो इन फर्स्ट पिक्चर देयर इज अ अट्रैक्शन ऑकर्स. क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि इधर जो कलर इंडिकेट हुआ है, सो वी हैव टू टेक हियर रेड कलर एज द साउथ एंड द ब्लैक कलर दैट इज ऑफ नॉर्थ. Okay, so here the south and here that is of north and this one is the south. Okay, so when we kept the bar magnet as like in this manner, तो इधर क्या हो रहा है, ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. सो दोनों पोल्स क्या है, अनलाइक्ड पोल्स है. सो बेसिकली दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सो जब हम अनलाइक्ड पोल्स को ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे. बट इन दिस केस, सेकेंड केस आप देखो, तो इधर क्या हो रहा है, रेड को हमने लिया था क्या, दैट इज ऑफ साउथ, और ये भी क्या है, दैट इज ऑफ साउथ. सो दोनों साउथ जब आपस में रखे हुए हो तो तब क्या होगा, सो बेसिकली दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, मतलब उधर क्या होगा, रिपल्सन होगा.
ओके. सो दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेट्स. सो जो बार मैग्नेट्स में हमको दिखाई देता है. ओके. सो लाइक पोल्स ऑलवेज क्या करेंगे, दे रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. सो दिस रिपल्सन एंड द अट्रैक्शन ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स. ओके. सो नेक्स्ट वन, that is the electrostatic force. So the force exerted by a charged particle, that is called the electrostatic force. Okay. So as in this case, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच भी कुछ फोर्स एग्जर्ट होता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके. सो हियर ऑल्सो इफ वी टेक टू सिमिलर और टू लाइक चार्जेस, मतलब अगर आप पॉजिटिव लोगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ओके. सम आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव. सो इफ यू टेक two positive charges, so basically they are going to repel each other. Okay. तो इधर क्या होगा, रिपल्सन. लेकिन अगर आप दोनों ऑपोजिट चार्जेस लोगे, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज द नेगेटिव, देन वो क्या होगा, दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्ट ईच अदर. ओके. सो अट्रैक्शन होगा. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स. तो उनके बीच भी एक फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक force. The next one, that is our gravitational force. So the gravitational force, it's an attractive force that is applied by the earth on all the objects. Okay. Not only the earth, अगर हम देखेंगे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ओके, एवरी ऑब्जेक्ट्स exert some force. They are possessing some force, that's called the gravitational force. Okay. not only our planets, जितने भी planets है, और अगर हम देखेंगे sun या moon, so every objects present in universe, they have possessing some force, and that's called the gravitational force. Okay. So here we discussed about the gravitational force of the earth. तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सो बेसिकली बाय यूजिंग द फोर्स अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. ओके. जब आप कुछ एक बॉल फेंकते हो ऊपर, तब क्या होता है, वो नीचे आता है ना. कुछ भी चीज़ अगर आप देखोगे, जैसे वाटरफॉल हो गया या एनी चीज़, जो भी चीज़ आपको आप ऊपर फेंकोगे, तो वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा. सो बेसिकली दैट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये क्या करता है, ये सब चीज़ों को खींचता है. ओके. अट्रैक्ट करता है. ओके. So this is all about the non-contact force. Then next, that is the pressure. So pressure means the force acting upon a unit area, which we call, that is the pressure. मतलब कितना फोर्स एक्टिंग कर रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट्स द प्रेशर. सो प्रेशर एस्टिमेट करने के लिए वी रिक्वायर टू फैक्टर. वन इज द फोर्स एंड अनदर वन, दैट इज द एरिया. ओके. So how much pressure exerted by an object, basically that depends upon the surface area of that object. Okay. तो एक ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कितना है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा. ओके. जैसे आप एक, तो सरफेस एरिया क्या है, जैसे आप एक, तो ग्लास का, सो जितने स्पेस ये लिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट्स द सरफेस एरिया. ओके. So the pressure is inversely proportional to the area. मतलब क्या है, अगर जो सरफेस एरिया अगर स्मॉल होगा, तो उधर प्रेशर ज़्यादा होगा. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, तो उधर प्रेशर क्या होगा, स्मॉल होगा. ओके. सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज ऑफ द SI यूनिट और द यूनिट ऑफ द प्रेशर, दैट इज अ पास्कल. ओके. सो हियर सम एग्जांपल्स ऑल्सो. लाइक अ फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, जैसे नीडल्स. So if you look at a needle, so it has a pointed end. Okay. So that means it has very small surface area. तो सरफेस एरिया स्मॉल है, इसलिए क्या करता है ये, सो बेसिकली इट exert a large pressure. Okay. When we applying a force by using the hammer on the needle, so basically it easily move inside the wall. तो क्यों ये इजीली मूव करता है, दैट इज ड्यू टू द लार्ज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नीडल. और क्यों लार्ज प्रेशर एक्सर्ट करता है, बिकॉज ऑफ इट्स
small surface area. Okay, also there are some other examples, जैसे आपका जो स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग का जो स्ट्रैप्स है वो जितना ब्रॉड रहेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगा. क्यों तकलीफ नहीं होगा? दैट इज ड्यू टू दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय दो स्ट्रैप्स. ओके, तो स्ट्रैप जितना ब्रॉड होगा तो उतना लेस प्रेशर एक्सर्ट करेगा. लेकिन अगर ये नैरो होगा तो ये क्या करेगा? लार्ज प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो आपको तकलीफ होगा. ओके, एंड ऑल्सो सम टूल्स दोज आर यूज्ड फॉर द कटिंग, तो वो भी बहुत क्या होता है, देयर इज अ वेरी शार्प एजेस. तो शार्प एजेस मतलब क्या है? उसका भी जो सरफेस एरिया है दैट इज अ वेरी स्मॉल. सो ड्यू टू दैट स्मॉल सरफेस एरिया दे एक्सर्ट लार्ज प्रेशर. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द pressure. So here the mathematical formula of the pressure, that is the force by area. Okay, so you have to remember this thing. And then the next slide, that is the pressure exerted by the liquid and gases. So first one, that is the pressure exerted by the liquids. तो liquids भी कुछ pressure exert करता है. जैसे आप अगर एक ग्लास में कुछ वाटर्स हुए, सो जो भी कंटेनर्स में वाटर है या जो भी लिक्विड्स है, बेसिकली दे एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. तो ये क्या करते हैं, ये जो कंटेनर का जो वॉल है तो उसमें एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ओके, सो बेसिकली द प्रेशर दैट ए लिक्विड एक्सर्ट ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, तो वो कंटेनर के बॉटम में लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, बेसिकली दैट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड इन दैट कंटेनर. ओके, एक ग्लास में जितने भी वाटर है, तो वाटर या जो भी लिक्विड्स है उसका हाइट कितना है, ये बेसिकली दैट हाइट ये क्या करेगा, ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ दैट कंटेनर, ये डिफाइन करेगा. ओके, सो वी कैन सिंपली से द प्रेशर टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द कंटेनर that is dependent upon the height of the liquid in that container. Okay, then the next thing you have to also remember, the liquid exert equal pressure on different points on the wall of the container having the same depth. मतलब क्या होगा, अगर हम देखेंगे जितने भी जो भी कंटेनर्स है, तो कंटेनर्स के ईच एंड एवरी पॉइंट्स में ये जो लिक्विड है दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन ईच पॉइंट. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. तो जैसे लिक्विड कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, वैसे ही गैस ऑल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर. जैसे आप बैलून्स में भी आप देख सकते हो, अगर आप ज़्यादा प्रेशर उसमें या ज़्यादा गैस आप जब फिल करते हो बैलून्स में, सो बेसिकली दे बर्स्ट आउट. तो क्यों बर्स्ट हो जाता है? क्योंकि वो जो एयर पार्टिकल्स है दे एक्सर्ट ए प्रेशर टुवर्ड्स द वॉल ऑफ बैलून. ओके, सो वो उसी प्रेशर से ही अगर ज़्यादा एयर प्रेशर हो गया, सो बेसिकली क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है. ओके, सो सिमिलरली इट ऑल्सो एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. ओके, लेकिन इधर एक चीज़ आपको याद रखना है, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एयर में या गैस में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज मूविंग. ओके, और क्यों मूविंग में रहते हैं? क्योंकि दे पोजेसिंग ए एनर्जी व्हिच वी कॉल दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. So because of the kinetic energy, they are always in motion. Okay, and because of this motion, they always exert a force to the wall of the container. Okay, so this is about the pressure exerted by the gas. Okay, then so thank you. This is all about the force and pressure chapter. So if there is any doubt, you can ask me in the comment section. Okay.